Hi, good evening, everyone. I'm Abhilash, and thank you for watching this session. This is the second session for the UPSC Mains 2024 Civil Services Examination, and under the Elevate Mains program. This is the second session for essay writing. I'm sure that with the 70 days remaining from today for 20 September 2024, you have chalked out a plan. You have already started writing your answers. You have already started or joined some institute wherever you feel that you will get the value. As I mentioned previously, that Elevate IS actually is not a coaching institute but an entity to boost your self study preparation. So wherever you feel that even though you have got evaluation, but because due to scale up, you're not able to get time, you're not able to get a mentorship where quality mentorship to one-on-one discussion, especially for repeaters or last attempters. You may join us and get your evaluated sheet also evaluated again. And the whole purpose is that you score high marks in the upcoming mains 2024. Going forward in the session today, uh, my previous session I had, if you recall, I would want to summarize on the previous session where we spoke about what essay is all about and what kind of expectation is there from the UPSC essay. And we also spoke about that various methodology to get ideas, how to formulate ideas, and how do we actually get points from where we can start writing an essay, make a flow. So in that, the most critical step was about I'll share this. Uh, share my screen where we spoke about once you have decided the topic that you need to start brainstorming. Second point, write down all the ideas that you think about the topic coming in your brain. Just keep on writing, not to classify pehla kaun sa dusra kaun sa. You just write out all the ideas that comes in your mind as you see the words, as you understand the meaning of the philosophy, whatever the ideas you want to write in. So put them all randomly. Then once all your ideas are out, you need to arrange them in a logical manner or in a sequential manner so that a reader gets a charm while reading the essay paper. Now once you put ideas which you are incorporating in the program, in the essay, you sequence it. You also then try to categorize it: introduction, body, and the conclusion.
What will be the introduction? How will be the body? What will enter in the body of the paragraph or the of the essay? And what will be the flow, sub points, whichever be your writing style. Now, once you have written that, you need to have enough time to read through or proofread once you have written whatever you have written, so that you understand that, okay, I have completed this essay as per my expectation. As it's a general essay paper, it should not be extremely technical. The candidates from technical background have this unknowingly they try to write down more about अपना technical area. If they are coming from engineering and some question which has come about automobiles or something, they get into deep, you know this is habitual. But because हमको ये जनरल पेपर लिखना है, जनरल स्टडीज पेपर लिखना है, तो ये उतना ही लेवल का नॉलेज होना चाहिए ताकि एक जनरलिस्ट का नॉलेज दिखाई दे. So that was last session one's essay. Today's session, as I mentioned, or as you know, that all the candidates who have enrolled, they can check out the handouts of the session. Today, I will run you through the handouts also in the screen, and people can see that in the description below. There is a link to download or go to the folder and do the take the handout. I would also want to highlight this point that in my introduction session on 3rd of July, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक ऐसे चाहिए on this topic. The world is not enough. Now I had put a poster of Pierce Brosnan, the James Bond series, but मैंने अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इस पर देखा नहीं. रिक्वेस्ट है कि अभी जो आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, consider this as a philosophical topic. The world is not enough. And please brainstorm. You would realize why I have given this कि अभी तक आज तक जब आप तैयारी कर रहे हैं, you have not started writing, you have not started opening your brain. या फिर आंसर राइटिंग में आप क्या कर रहे हैं, यू राइटिंग अ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ रहा है. नथिंग ओपन एंडेड हैज बीन गिवन टू यू टू राइट. आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, आपने पीवाई क्यू देख लिए होंगे मेंस के पिछले एक महीने में, जब से प्रीलिम्स दिया होगा. 16 तारीख को प्रीलिम्स का प्रीलिम्स हुआ था और 10 तारीख हो गया, ऑलमोस्ट अराउंड 25 days हो गए. what has happened is writing skill is most important to be inculcated और अभी activate करने की जरूरी है. So I gave you a poster where psychologically I wanted you to write more and much dimension which you can write about it. Because अगर आप उसको लिखेंगे तब मुझे ये समझ में आएगा कि आप when we do the personal counseling, I'll understand what is your way of thinking. दैट वुड हेल्प मी, बिकॉज जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है ना, प्रेशर सिनेरियो में, एग्जाम सिनेरियो में आप वैसे ही सोचने वाले हो. आप जितना भी ट्रेनिंग कर लो, अभी जितना भी कर लो, डिफॉल्ट मोड में चला ही जाएगा इंसान. उस डिफॉल्ट मोड को नहीं जाने के लिए और अलाइंड रहने के लिए कि हमें हाई स्कोर करना है इस एग्जामिनेशन में, वी नीड टू दिस काउंसलिंग सेशंस आर नीडेड. एंड उसका पर्पस सॉल्व हो, इसलिए मैंने कहा था कि ओपन एंडेड ऐसे where you write. Anyway, I would still expect people who are watching now to write me an essay on the world is not enough and send me. Coming back to today's session, so I will do one thing is I have done a small presentation on how to write the essay, which is a generic one, and then I'll go through the handout of today's session. Where there are certain activities, people who are doing the session with me watching it live, आप अपना एक नोट पे रख के साथ में वो एक्टिविटी करिएगा. एंड हमने जो पिछला हैंडआउट देखा था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिवाइड द टॉपिक किया था, तो आई एम श्योर आपने 2012 तक तो टॉपिक डिवाइड किया होगा, विच वुड हैव ओपनड योर माइंड इन अंडरस्टैंडिंग किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एरियाज से एसएस के टॉपिक आ सकते हैं. Coming to our today's session,
how to write an effective essay for the UPSC civil service examination. So understanding the essay topic, अभी पहला क्वेश्चन और पहला हेडेक हमारे दिमाग में होता है, 4 टॉपिक दिए गए हैं इन सब सेक्शन ए और सेक्शन बी, कौन सा इस टॉपिक में मैं लिखूं कि मुझे ज़्यादा मार्क मिले? अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिससे ज़्यादा मार्क मिलेंगे, तो इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली द राइट अप्रोच। अब हमें उस टॉपिक पे लिखना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपके पास आइडियाज़ हो। ये नहीं कि आपके साथ वाला क्या लिख रहा है, कि आपका दोस्त क्या लिखने वाला है, आप वैसे सोचने लगे कि हाँ भाई, इसमें कुछ लिख सकता हूँ क्योंकि वो लिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जिस पे आपके पास आइडिया हो। तो उस चीज़ के लिए आपको चारों टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, एंड इट इज़, व्हेन वी रीड दैट टॉपिक यू नीड टू आल्सो सी कि आपके पास इमेजेस आने लगे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी एजुकेशन पे पढ़ लिया, तो आप देखिए एजुकेशन के बारे में आपको क्या अवेयरनेस है, एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपको क्या अवेयरनेस है, डू यू हैव सम डेटा पॉइंट्स टू से, डू यू नो अबाउट इंडियाज वेरियस एजुकेशन मेथोडोलॉजी, क्या कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर्सपेक्टिव से, कुछ जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, एजुकेशनल एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया। हमने ये बात फर्स्ट सेशन में भी की थी, दैट हाउ डू यू ब्रेनस्टॉर्म। सो वो अगर आपके दिमाग में एज एन इमेज, यू डू नॉट हैव टू राइट, देन वेयर, जिसमें आपको ऐसा वो जो टॉपिक जिसके बारे में आपके दिमाग में ज्यादा इमेजेस होंगे, वो आपको उत्तेजित करेगा, आप उसको चूज करें। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसमें एक बड़ा थिन लाइन भी है। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक पूछ क्या रहा है, एंड व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। सो नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वुड read out a topic, I have not written it, but there is this topic, I exactly don't recall, uh, ये मैंने बेसिकली किसी ईयर में देखा है कि कहाँ देखा है, बट एक टॉपिक है, द परसूट ऑफ ट्रूथ requires the courage to dismantle the illusions that comfort us. सत्य की खोज के लिए हमें सुखदायी भ्रमों को समाप्त करने का साहस चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन। I repeat the topic. The pursuit of truth requires the courage to dismantle the illusions that comfort us. अब क्या है इसमें ना, परस्यूट ऑफ ट्रूथ लिखा हुआ है, एक करेज एक कीवर्ड है, डिसमेंटल है, इल्यूजन है, और कंफर्टस। अब जैसे आप परस्यूट ऑफ ट्रूथ सोचते हैं, बहुत कॉमन है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि बिकॉज इट इज सेइंग समथिंग अबाउट ट्रुथ, मुझे जितना कुछ ट्रुथ के बारे में पता है, मैं बहुत ट्रुथ के अराउंड लिख के मैं इसको लिख सकता हूँ टॉपिक को। एंड देन यू ब्रेनस्टॉर्म अराउंड ऑल द आइडियाज टू से ट्रुथ, सत्य में जयते आ जाएगा, जितना गांधी जी ने बोला, स्पीकिंग ऑफ द ट्रुथ, सारा चीज आपके दिमाग में आने लग जाएगा। And then you start writing the essay around what you understood about truth, what is truth, and all that thing. But let me be very very clear, इस टॉपिक में जिस तरीके से जो ये टॉपिक बात कर रहा है, वो सिर्फ सच्चाई की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है सत्य की खोज के लिए द परस्यूट ऑफ ट्रूथ रिक्वायर्स द करेज, साहस चाहिए, टू डिसमेंटल द इल्यूजन्स दैट कंफर्ट अस, टू डिसमेंटल द इल्यूजन्स, हमें वो सब इल्यूजन्स जो हमारे अराउंड है, जो जिससे हमें कंफर्टेबल मिल रहा है, उसको हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा, तभी हमें उस सत्य की खोज हो पाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, अगर आप एसी रूम में बैठे हो, बाहर क्लाउडी वेदर हो, और आपने बोला कि ओह क्या बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है, क्लाउडी सा फीलिंग आ रहा है, बट क्या वो सत्य है? सच, इज इट ट्रूथ? नहीं।
It is not truth. This is one perspective of yours. But if you actually want to understand the truth, what you have to do is you have to come out of the AC room of your comfort zone and go on the field outside under the sun or under the cloud to understand what the weather is. And then when you find this sultry weather, this weather which is humid, the weather which is very, very difficult to stand in, then you realize कि that exactly is the truth. Actually, वाह क्या weather नहीं है. The reality is very different from what you saw from your comfort of AC room. तो उस तरीके से मैंने एक एनालॉजिकल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है. सो हमको जब चॉइस पे टॉपिक पे लिखना है तो ऐसा नहीं कि एक वर्ड के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है तो मैं उसे चूज कर लूं. यू हैव टू सी दैट यू आर ऑल्सो एबल टू मीट द अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट और उसके अराउंड आप कुछ थीम पे लिख पा रहे. सेकेंड पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्म योर एंड ऑर्गेनाइज योर आइडिया, जो हमने डेफिनेटली आप पिछले वाले सेशन में मैंने कहा पॉइंट वाइज आप जा सकते हैं. फिर देन यू हैव टू टेक एन अप्रोच कि किस तरीके से मैं ऐसे लिखने वाला हूँ. ये जो अप्रोच आप लिखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ योर थिंकिंग स्टाइल इज, व्हाट यू राइट. कई लोगों को स्टोरी टेलिंग टाइप का स्टाइल अच्छा लगता है, वेयर दे डू एन इंट्रोडक्शन वेयर देयर इज अ स्टोरी, जिससे कि हाईलाइट करके वो टॉपिक पे आते हैं. एंड फिर उस टॉपिक पे आने के बाद उस टॉपिक के अराउंड जो भी उनको कहानी बोलनी है, जो भी पर्सपेक्टिव बोलनी है, वो एक फ्लो में बोलते जाते हैं. फिर एक बार टॉपिक को फ्लो में बोल दिया, उसके बाद वो कंक्लूड करने की कोशिश करते कि हमने पिछले जो भी पैसेजेस में इन इन चीजों की तरफ देखा, पर इसका जो भी कंक्लूजन है ये निकलता है कि वेदर इट इज वैलिड और रेलेवेंट. ये आपको कनेक्ट करना है टॉपिक के जो आपने थीम लिया है, जो भी आपने टॉपिक चूज किया उसका जो भी स्टेटमेंट है, तभी जाके एक ऐसे का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है. नाउ एवरी क्वेश्चन और एवरी टॉपिक नीड्स अ डिफरेंट डिफरेंट हैंडलिंग. तो ये आपको लिखना पड़ेगा तभी आएगा, बोलने से नहीं आएगा. नॉट लाइक एज आंसर राइटिंग मैंने इसके कीवर्ड्स लिख लिए तो ये इसका डिमांड था मैंने उसको मीट कर लिया, ये नहीं होगा. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू हैव टू राइट. इवन व्हेन आई मेंशन द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, खाली पर्सपेक्टिव्स लिख देने से नहीं होगा. यू सी दैट यू आर एबल टू राइट पैराग्राफ्स, you see that you are able to write something which the reader enjoys reading, you see that you are able to connect, link, flow. That would make somebody actually spend some time in your essay. अगर पेपर चेकर ने आपके पेपर पे 3 पन्ने पलट लिए पढ़ते पढ़ते, तो आपका स्कोर अच्छे रेंज में आएगा ही आएगा. बट अगर वो फर्स्ट 2 पैराग्राफ से ही उसने इंप्रेशन बना लिया, then you are getting average. They are not going to read the entire paper. हो गया, समझ गया कि इसका यही सोच है. Now that's why crafting a message, crafting is very important. आपने देखा होगा आजकल के जो यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे, इंस्टा वगैरह देखते होंगे, तो सबसे पहले उसमें उन्होंने एक ऐसे तरीके से क्लिक बेट थंबनेल बनाया होगा कि जिसको देख के आपका मन करेगा देखो तो ये क्या बोल रहा है. और जैसे ही आप देखो तो क्या बोल रहा है क्लिक करते हैं, देन यू रियलाइज दैट देयर द हुक मोमेंट इज गिवन ऑन द फर्स्ट. जिस हुक मोमेंट की वजह से you see the entire video till the time that hook moment is reached. So what they do purposefully, they grab your attention, and once the attention is grabbed, then they set the tone की जो बताना चाह रहे. आप मूवी में ट्रेलर पिक्चर वगैरह का जो देखते होंगे तो ट्रेलर को दिखाते हैं बिल्कुल धमाकेदार, but when you go in the entire movie and you realize कि movie was something else, trailer was talking about something else. The entire trailer was made to seek your attention कि आप मूवी का टिकट परचेज करें और आप मूवी देखें. So similar should be your way of looking at the examinations, essay writing, जहाँ पे आपको पहली intro passages around में you have to hook the reader, and it should be very very thought provoking quote or an anecdote or a rhetorical questions, however it should be. आप ऐसे लिख रहे हैं, स्पीच नहीं लिख रहे हैं. तो ऐसे लिखना और स्पीच लिखने में डिफरेंस होता है. तो ऐसे लिखने का आप इनफैक्ट आप जब लिखोगे और इवैल्यूएट करने के लिए भेजोगे तब मैं ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा. देन आफ्टर यू हैव डन द हुक, यू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. वंस यू हैव क्रिएटेड कि हम इस बारे में बात करने वाले, यू प्रेजेंट योर थीसिस, उस बारे में हम क्या बात करने वाले हैं और हम इस हिस्से में किस किस तरीके से इस पर जाएंगे. What all areas, aspects we are going to look into this essay. And then you start writing the body where you intend, keep your entire focus on the
जो भी आपने थीसिस को प्रेजेंट करने के लिए पर्सपेक्टिव्स बोले हैं, एंड फाइनली you give it a conclusion. Now, coming to developing a structured body, you have to organize your paragraph. That your paragraph is actually small sentences, has very good logical flow and transitional words. मैं इन हैंडआउट्स में कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स का भी आपको मैं इंक्लूड किया है, जो आप देखेंगे तो यू विल यू शुड स्टार्ट यूजिंग देम इन योर एसेज स्लोली, तो आपको कॉमनली एक हैबिचुअल हो जाएगा और वो इंस्टेंटली आपको याद आएगा. प्रोवाइड रेलेवेंट एविडेंस. अगर भी आप ऐसे में वेर एवर यू आर पुटिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी इज मच important moral value than any other value or something like that, और आप उसे national और मतलब as a country wise you want to show that which country is very human in perspective, तो वहां पे आप अगर इंडिया का एग्जांपल देते हो तो यू विल हैव टू से ऑल दी से वैक्सीनेशन में, जो कोविड वैक्सीनेशन में, तो ऑल स्मॉल इकोनॉमीज, पुअर नेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड through vaccine distribution. So you have to remember that you are able to quote those examples, those initiatives, which shows the moral quality or moral value when it comes to a ऐसे जहाँ पे moral values की बात हो रही है. तो आपके examples के जो nature है वो आपको एक list अभी से बना के रखनी चाहिए. In fact, in our personal one to one mentoring, what I am doing is, जिसका जो नेचर है, जिस तरीके से जो लिखता है, उसके तरीके से मैं वहां पे कुछ कुछ एग्जाम्पल, कुछ कुछ कोट्स देता रहता हूँ, सो दैट दे डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च. उसको किस तरीके से अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हैं वो उसको इंक्लूड करें और फिर लिख के दिखाएं. नाउ एक होता है कि एसे के टोन में, यूजेज ऑफ योर लैंग्वेज एंड टोन. अगर आप थर्ड पर्सन में ऐसे लिख रहे हैं तो यू हैव टू इंश्योर दैट द एसे इज रिटन एंटायरली इन द थर्ड पर्सन. अगर आप, एंड दैट्स मोर सेफ, पर अगर आप ऐसे पूरे एक्टिव सेंटेंसेस के साथ लिख रहे हैं, यू हैव टू सी दैट इट इज कंप्लीटली एंगेजिंग. आप कोट्स अनकोट्स कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं टू मेक इट लुक मोर एक्टिव वे ऑफ राइटिंग एन एसे. इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट, तो आपको उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा. और ये बोलने से नहीं आएगा, आप जब तक लिख के नहीं दिखाएंगे कि किस टॉपिक पे वो लिख रहे हैं वो भी क्वेश्चनेबल है. व्हाई डिड यू चूज दिस एक्टिव एसे? नाउ कमिंग टू समराइजिंग की पॉइंट्स. एक कंक्लूजन में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट पेपर चेकर most of the time after reading your intro they directly jump to conclusion. First of all, if you know the art of writing, you are going to impress them with your conclusion. And that's why it is every time in every part, आप कहीं भी किसी से भी मेंटर से मिले, अपने स्कूल टीचर से मिले, everybody would put the focus कि आप कंक्लूजन लिखा करिए. जहां पे भी आप करते हैं, राइट इट एज ए कंक्लूजन सेक्शन एंड राइट कंक्लूजन. ensure that you have written conclusion or would like to conclude somewhere. The conclusion start should be given. It should summarize what you have seen through the essay. आपने किस तरीके से क्या क्या चीज एनालाइज किया है, जो आपने पहले बताया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन द एसे, किस तरीके से आपने उसको किया, वो आप वो पॉइंट को वहां लेके आएंगे. और फिर अगर टॉपिक फ्यूचरिस्टिक है, उस टॉपिक के थीम को जो भी आपने अनलॉक किया है उसको आप वहां जोड़ेंगे. सो एज आई मेंशन इन द प्रीवियस स्टार्टिंग इटसेल्फ की टॉपिक भी आप जो चूज करते हैं वो कंक्लूजन में उसका इम्पैक्ट या उसका एसेंस दिखना ही चाहिए. नहीं तो कंक्लूजन भी कंक्लूजन नहीं है, या तो वो एक स्टेप आगे है या तो उसको डिसएग्रीमेंट में है. वो जिस भी तरीके से वो टॉपिक का वहां पे मेंशन होना बहुत जरूरी है. सो कंक्लूजन राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. नाउ दीज पार्ट्स व्हिच इज डूज एंड डोंट्स, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एंड ऑल, दैट आई वुड स्किप इट फॉर नाउ, बिकॉज जब तक आप लिखोगे नहीं, मैं बोलने से क्या होगा. आप क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या लिख रहे हो, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके, कितने लंबे सेंटेंस, छोटे सेंटेंस, वो सब इंपॉर्टेंट करते हैं. सो यहाँ पे क्या है कि यूपीएससी में, बिकॉज ये जनरलिस्टिक ऐसे है और जनरल स्टडीज में है, आपका इंपॉर्टेंस है कि हाउ मच डू यू नो अबाउट दी वेरियस पर्सपेक्टिव्स, वेरियस ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक.
how bigger, how larger canvas you can paint. इसलिए the first guide which I mentioned was uh, our preamble. उसके बाद I mentioned Gandhi ji's talisman, then I mentioned our syllabus, general study syllabus. उससे आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे how and where you have to go to get the this thing. राइटिंग का क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं और या ऐसे को ग्रो कर सकते हैं. अगर आपका philosophical essay है तो definitely you cannot use other above technique, but here you have to see that you start doing a narrative like a movie where एक थीम को आप पकड़ते हुए philosophical थीम में जिसमें आप गए हो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज करें. You start using various impact of those real world examples and emphasizing that in the conclusion जो भी आपने थीम यूज किया था स्टार्ट करने के लिए उसको आप जस्टिफाई करें. फिलोसफिकल टॉपिक हैंडल करेंगे हम थोड़ी देर में. आई हैव आल्सो मेंशन इन द हैंडआउट ऑन दिस. आई विल आल्सो अगेन गो थ्रू दिस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. As you're aware that in the last many years, 5-7 years, the we have been given 180 minutes for 250 marks. That is 3 hours for two essays, 125 words, 125 mark, 125 mark uh, per essay. तो हम उसका एलोकेशन देखें तो यू टेक टाइम इन चूजिंग टॉपिक. 10 आपको 90 मिनट्स एक टॉपिक के लिए लगता है. इन 90 मिनट्स में आप पहला 10 मिनट टॉपिक चूज करने में लगाएं. फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. एस्से का पार्ट जो रफ पार्ट है 30 मिनट्स तक आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है जिसमें पूरा आउटलाइन बनाना है, फ्लो बनाना है. तो अराउंड 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स 40 मिनट्स आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे दैट यू हैव एक्चुअली जितना भी आपका आइडिएशन है आपने पूरा आइडिएशन लिख दिया है, सारे फ्लो बना दिए हैं, कौन सा पैराग्राफ इंट्रो में आएगा, कौन सा पैराग्राफ कंक्लूजन में, कौन सा बॉडी में, सारा चीज आपने कर दिया है. वंस यू हैव डन द हार्ड वर्क 3 मिनट्स के लिए आप ऑक्सीजन ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए. स्टार्ट विजुअलाइजिंग द एस्से. ये एस्से जो भी आपने सारे इंफॉर्मेशन लिखे हो वो जब लिख जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक. इसका इंट्रो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे कोट आएगा, यहाँ पे मैं इस पैसेज यहाँ से करूंगा, मैं पैसेज चेंज करूंगा, मैं ये एग्जांपल यहाँ पे डालूंगा. ऑल द थिंग यू हैव टू विजुअलाइज हाउ द एसे इज गोइंग टू स्टार्ट एंड विच साइड ऑफ द पेज इट इज गोइंग टू एंड. पूरा ऐसे आपको दिखना चाहिए वर्ड टू वर्ड आप क्या लिखने वाले हो, कैसे सब हेडिंग लिखने वाले हो, कहाँ सब अंडरलाइन करने वाले हो, सब आपको दिखने चाहिए बिकॉज आपके पास सारा चीज आपने ब्रेनस्टॉर्म करके रखा है. वंस योर विजुअलाइजेशन इज वेरी क्लियर देन इट्स अ गो. 40 मिनट्स आप देखते हैं नॉन स्टॉप लिख पाओगे पूरा एसे. 40 मिनट्स 1 मिनट में अगर हम 20 वर्ड लिखेंगे तो 40 मिनट्स में हम 800 वर्ड लिख लेंगे. तो 800 से 850 वर्ड तक आप इस एसे में लिखने वाले हो और इतना अमेजिंग लिखने वाले हो कि बिकॉज यू ऑलरेडी विजुअलाइज्ड आप क्या चाह रहे थे, आपने क्या जो आपने सोच रखी थी, द वे यू क्रिएटेड योर फ्लो एंड थिंग्स, द वे यू हैव पुट इट. ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी डरावना लगता है, जैसे 40 मिनट तो बहुत कम है. मेरा हिसाब है पहले करके देखिए. दिस once you do that you see that the amount of quality this essay will be of. Then when we have counseling session I will ask what did you visualize, क्या सोच के लिख रहे थे. अगर आपकी सोच या कहीं पे भी गलत है देन द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कम्स इनटू पिक्चर. नहीं तो हर बार आप वही चीज करके देंगे तो हाउ डू वी नो दैट थिंग्स हैपन. तो दिस इज एग्जैक्टली द टाइम एलोकेशन फॉर द स्ट्रेटजी. आपको ये देखना है कि आपके एसे का जो भी सारा फ्लो है वो आप यू मेंटेन दैट वेयर अच्छा मुझे बोलना भी था, ये मैं नीचे रनर लगा रखा है. अगर किसी को कुछ लिखना है बोलना है तो आप लाइव चैट यूज कर सकते हैं और you can DM me on the WhatsApp as well. The number of WhatsApp is also been shared.
and I will discuss it after the session is over. So, see, your essays, थोड़ी सी बैलेंस तरीके से ऐसे हो, पढ़ने में मजा आए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी नीड टू गेट गुड मार्क। आंदोलनकारी और क्रांतिकारी थॉट्स जो है उसको आप किस तरीके से सही तरीके से पिक्चर आउट कर पाए, ताकि कोई उसको पढ़ के एजिटेटेड ना फील करे, बट उसको रिलेट कर पाए। अगर इफ इट इज नॉट रिलेटेबल, you will not actually get any marks even if you have a good point to drive across. And controversial radical statement, ऐसा कुछ भी statement आप don't try to ruin your attempt while doing all this. I'm telling you, this is not a platform to send messages of your thought or of your difficulties. This is a platform for a job जहाँ पे people are giving this examination. So try to see that you are aligned with the demand of the job. तो अगर आप अलाइन नहीं रहेंगे तो फिर यू विल नॉट बी क्वालिफाइंग एनी विच। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रन थ्रू इन द पीपीटी, बट आई आल्सो वांट टू टेक यू थ्रू द हैंडआउट जो मैंने भेजा है। नाउ हैंडआउट हैज ऑल द एक्टिविटी जो भी हमें साथ साथ करना है। तो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कहीं पे भी कुछ पेन एंड पेपर लेके थोड़ी सी बैठिएगा, सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर वेर एवर इट इज देयर। मेरे को खाली चैट में अगर आप बता देते या व्हाट्सएप में बता देते कि वेदर आई एम ऑडिबल, या शुड आई मेक इट लाइक दिस छोटा हो जाए, या मैं अपना इमेज ही पीछे से हटा देता हूँ। लेट इट बी प्योर हैंड आउट। ओके, so I hope I'm audible. All the folks who are watching on YouTube, up, you can use the live chat function to reach out to me. I will use the FAQ time which we have after the session, 5-10 minutes to discuss on that. The number of, the details are there in the description, and also I'm it's being run on the screen. Apart from that, people who are want to join our programs, I know it is. Uh, I would suggest first have a session with me on your counseling session, which is absolutely free. The link is there in the description how to book your counseling. मुझे आपको जानना है, और अगर ऐसा अगर वाइब नहीं मैच करेगा, वेयर यू फील दैट दिस मेंटर इज नॉट, उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, वेर एवर, तो इट विल नॉट, द सिंक विल नॉट हैपन। सो पहले आप सेशन बुक करिए मेरे साथ, लेट मी अंडरस्टैंड, गो थ्रू योर जर्नी, एंड आई हैव केप्ट इट ए लिमिटेशन बिकॉज फॉर दिस रीजन कि बोथ ऑफ अस हैव टू रेस्पेक्ट आवर टाइम, एंड इतना ही टाइम है जितने में आउटकम दिखाना है। एंड आई मेंशन्ड इन before I started my session on the launch day that my only objective is कि आपका जो ये मार्कशीट है 2024 का, उसमें रिकमेंडेड लिखा हो। दैट्स इट। ना मुझे कोई कुछ चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए। इफ दैट इज योर गोल एंड फॉर दैट यू आर प्रिपेयरिंग whatever way you are thinking, then I am there to help you around that. Now coming to the handouts. So today is this, our second session is going. After the session, there's an activity also which is about writing the test paper.
Please see, this time you write both the essays, two essay you have to write and submit by EOD. If you don't want to write this assignment, आप अपना कोई भी assignment लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए और मुझे दो ऐसे लिख के दीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के हिसाब से. You should have spent 3 hours for writing it. That's the only intent. While writing the while checking evaluate करते वक्त मैंने कई बार देखी है कि लोग, अगर आपके पास आइडिया नहीं है ना, खाली वर्ड कंज्यूम करने के लिए बहुत सारा चीज ऐसे रैंडम लिखते रहते हैं. दिस बीटिंग अराउंड द बुश, ये आपको लगता है कि अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि वो 800 वर्ड रीच आउट करने के लिए आप कुछ भी अराउंड लिखते रहिए, उसी को ही घुमा घुमा के लिखते रहिए. एक्चुअली सामने वाला उसे आराम से पकड़ लेता है कि आप पॉइंट पे, आपके पास पॉइंट नहीं है, आप ऐसे घुमा रहे हो, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग वर्ड्स. इधर से उधर से सेम ही चीज लिख रहे हो, पहले भी वही लिखा था, अभी भी वही लिख रहे हो. तो देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव. एज अ पर्सनैलिटी आपका जो इमेज है ना, वो डाउन हो जाता है. तो इफ यू डोंट हैव, यू हैव टू जंप फ्रॉम वन आइडेंटिटी टू अनदर. यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश. स्पेशली रिटन, इसमें बातें करने में ठीक है, हम ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ लग रहा है. But when it comes to writing, then it has to look different. It has to have a different purpose हर पैराग्राफ का. So सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सिंपल वर्ड्स रखिएगा. फ्लावरी वर्ड्स और ऑक्सफोर्डियन टाइप का कुछ इंग्लिश डेफिनेटली नहीं, नॉट एज गुड, आपके लिए अच्छा नहीं होगा. स्मॉल सेंटेंस विथ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. कहीं पे भी इज वॉज इज या ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख गया, ये समझ नहीं पा रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो भी एक इंप्रेशन डाउन करता है. कोट्स यूज करना इज नॉट मैंडेटरी. कई लोगों को अच्छा लगता है कोट यूज करना, तो आप यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं जब स्कूल में पढ़ता था और ऐसे में हमारी एक टीचर थी, वो हिंदी की टीचर थी, और हिंदी में हम ऐसे लिखते थे तो बहुत सारे कोट्स यूज करने के लिए होता था. श्लोका यूज कर लिया कि कुछ कुछ मुहावरे यूज कर लिए. तो वो कहती थी कि ये सब जो श्लोक है, कोट्स है ना, वो काजू और किशमिश है. और एक पुलाव, जो ऐसे एक पुलाव है, उस पुलाव में काजू किशमिश थोड़ी सी पड़ा हो तो बहुत अच्छा लगता है. पर अगर आप चावल निकाल लो और खाली काजू ही किशमिश डालते रहो, तो वो पुलाव और बनता नहीं है, अब वो अच्छा भी नहीं लगता. तो ऐसा भी आपको नहीं करना है कि हर 3 स्टेज के बाद कोट पे कोट, कोट पे कोट. ऐसा नहीं करना है. आप देखिए कि यू हैव इनफ चावल फॉर योर पुलाव, एंड यू आर एबल टू यू नो वेल, in a very good way, present your coherent way, present your idea. ऐसे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए. देखिए कि ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा बोलने के चक्कर में क्या होता है, टॉपिक से आगे चले जाते हैं. एंड इट शुड हैव, व्हेन यू विजुअलाइज, यू रियलाइज दैट कि हाउ मच आई शुड कीप माई इंट्रोडक्शन, सो यू विल कीप दैट वे. एंड कंक्लूजन भी उसी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी, कंक्लूजन शुड बी नेचुरल, नॉट एब्रप्ट कि अचानक से खत्म कर दिया. तो ये दोनों पार्ट की तरफ देना बहुत ज़रूरी है. हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हम पढ़ पाए, पढ़ने लिख आंसर पेपर चेक करने वाला पढ़ पाए. आप ऐसा मत लिखिए कि जैसे आप रहम कर रहे हैं लिख के, वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा. और लेंथ ऑफ द एसे जितना मैटर नहीं करता, इट इज मोर ऑन द सब्सटेंस. व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्रेजेंटिंग और एक्सप्रेसिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक एंड कन्विंसिंग. वो एक एक चीज पढ़ता जाए, लाइक दैट. So coming next, whatever the form of you know
एक ऑर्गेनाइज्ड ऐसे थोड़ी सी हेल्प करता है आपको कि क्या आप कहना चाह रहे हो। तो स्ट्रक्चर्ड ऐसे में, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू सी दैट अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये 3 टॉपिक है। मैनेजिंग वर्क एंड होम, इज द इंडियन वर्किंग वुमेन getting a fair deal? Women's reservation bill would usher in empowerment for women in India if women ruled the world. Now, all the three are speaking about women, but the topic is different from each other. तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपने प्रिपेयर किया है वुमेन के बारे में। ऐसा नहीं कि जो भी आपने प्रिपेयर किया आप उधर लगा दो, बिकॉज वुमेन के बारे में तो बोल ही रहा है ना। ऐसा नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एसेंस, व्हाट इज दैट, यू नो, टाइटल किस तरफ हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। एंड देन यू हैव टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट एंड आइडियाज अकॉर्डिंग। ये आप हैंडआउट में पढ़िएगा, मैंने ये भी पीपीटी में भी कवर किया। ये है कुछ ट्रांजिशनल, मैं जो बोल रहा था लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जब आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ जाते हैं, then you need to have some transitional words and phrases which kind of connects the passages. So these are like when your addition to continuation, next, besides, further, again, moreover, likewise, in addition. जब आप कंपैरेटिव कुछ लिख रहे हैं, सिमिलरली, somewhat similar, in a like manner, likewise. अगर आप कॉन्ट्रास्ट में कुछ लिख रहे हैं, however, but on the contrary, after all, nevertheless, still, and yet, notwithstanding, at the same time. अगर आप कंसेशन कुछ दे रहे हैं, although, after all, naturally, it may be admitted, of course. एग्जाम्प्लिफिकेशन वगैरह आपको मेंशन करना है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर, स्पेसिफिकली, इन फैक्ट, इंसिडेंटली, इन अदर वर्ड्स। तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कोई रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस दिखाना है, दस, एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस, इन शॉर्ट, हेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, देन। अगर पैसेज ऑफ टाइम दिखाना है, ऑफ लेट, सिंस, until, thereafter, soon, meanwhile, while, shortly, immediately, at length, from this point. अगर आपको समराइजेशन दिखाना है, ये बहुत यूज होता है। टू कंक्लूड, टू सम अप, ऑन द होल, इन अ नॉट शेल, इन ब्रीफ। अगर आपको कोई ऐसे मिसलेनियस तरीके के पैराग्राफ जोड़ने हैं, विदाउट डाउट द क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस, so far so good, in spite of, paradoxically, at the outset, as a matter of the fact. Now this paragraph combining is actually is an art. अब क्या वर्ड आप चूज करते हो, वो पैसेजेस को या वो ऐसे के पॉजिटिव टोन को दिखा रहा है, नेगेटिव टोन को दिखा रहा है, कॉम्पिटिटिव टोन को दिखा रहा है, वो उससे मीन करता है। तो आप जब यूज करें तो यूज चेक थ्रू दिस कि आप ये सारे वर्ड्स यूज करके पॉजिटिविटी या जो भी तरीके से आप दिखाना चाहते हैं वो दिख पाए। आई वुड रिक्वेस्ट आप इस हैंडआउट को एक बार रन थ्रू करें बिफोर यू राइट टुडेज essay. I will now quickly talk about some of the places, with interaction with multiple people who have had the experience of marking UPSC uh, test papers. It has given that something which is very, very uh, relevant, जो आपके ध्यान में हमेशा होना चाहिए. Candidate's grasp of the material, its relevance to the topic chosen, his or her ability to think constructively, his or her ability to present his or her ideas logically and effectively, his or her ability to present his ideas concisely.
आपके पास टाइम वही लिमिटेड है, आपके पास वर्ड का लिमिटेशन है, आपकी सोच है, आपकी पर्सपेक्टिव्स है, ओपन एंडेड टॉपिक है, जनरलिस्टिक रहना है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे आप अपने क्वालिटीज़ की तरह भी दिखा सकते हैं इन द एसे। And that's what I mentioned in the first session, opening session. An essay is the only place where it allows you to you know be yourself, and somebody to gauge your personality through what you have written. Now, approaching a philosophical topic. Now, philosophical topic definitely divide the topic and keywords. इस सब पे आता नहीं है. And these are open-ended topic which showcase a moral tone or emphasis on idealistic tone. किसी का कोट हो जाएगा, किसी का कुछ सेइंग हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जस्टिफाई टाइप्स। सो इसमें हमें चाहिए पहले तो रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन। मैंने पहले भी इसको इस सेशन में बताया कि कितनी सारे एग्जांपल्स आप डाल सकते हो। फिर एक आपको एक स्केचिंग करनी पड़ेगी, एक सेल्फ मेड एरिया बनाना पड़ेगा, और बाउंड्री ऑफ टॉपिक एंड डिस्कशन और जिसके डायमेंशंस। जब मैंने आपको द वर्ल्ड इज नॉट इनफ लिखने के लिए कहा, तो आपने देखा कि कैसे उस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर ने द वर्ल्ड इज नॉट इनफ कोट के हिसाब से पूरे मूवी को बनाया। उसमें किस तरीके का उन्होंने किसको हीरो को दिखाना था, तो क्या क्या पर्सपेक्टिव्स दिखाए, कौन सा एक क्या चीज को बनाया उन्होंने कि हाँ भाई, इफ आई रिकॉल, आई थिंक द वर्ल्ड इज नॉट इनफ वाज सम डायमंड का चोरी हो जाता है साउथ कोरिया से एंड ऑल दैट थिंग्स, ऐसा कुछ था। सो दे हैड अ एंटागोनिस्ट जो कुछ कर लेता है, देन दिस पर्सन चेजेस, वो कैसे कैसे दुनिया भर के हर हर वर्ड से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, कनेक्ट करता है, लिंक, लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ही जेम्स बॉन्ड कम्स आउट विनर, एंड द मूवी एंड्स अप विद अ नोट दैट he whatever it is, the bond is going to stay on. तो ऑल सारी चीजें जो थी, तो दे क्रिएटेड एंटायर इमेजिनरी स्कोप एंड इमेजिनरी टाइमलाइन, इमेजिनरी स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो, और हमने उसे एंजॉय किया एग्जैक्टली द सिमिलर वे। एक फिलोसॉफिकल एसे में आपको इस तरफ मिल जाता है। नाउ in the conclusion with the essays, one emphasis on the conclusion. Essay does not need to justify the topic or its morality. फिलोसॉफिकल एसे में स्पेसिफिकली अगर कोई कोट आपने पढ़ा लिया, और जरूरी नहीं कि आप उस कोट को जस्टिफाई करेंगे कि उसी की तरह ही सिर्फ हैंड्स प्रूफ करने पे लग जाएंगे। आप कंक्लूजन में आपने जो उसका जिस्ट समझा है, जो कॉन्टेक्स्ट उठाया है, उसके अराउंड बात कर सकते हैं। केस स्टडीज, इलस्ट्रेशन, अगर हम एक कोट पकड़ने विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इन एरियाज के अराउंड सोच सकते हैं। को रिलेटिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, को रिलेटिंग पावर टू द रूलिंग सोसाइटी, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, स्केचिंग डायमेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, justice, political, implying the quote from magnitude of global to individual and highlighting both side of the debate. With greater powers comes greater responsibility. Adding case study of Chanakya, tribes, clans, democratic movement, wars, autocracy. Concluding that ये सब हमने बोल दिया है, इसके अराउंड हमने बातें कर ली है। Hence, with greater power comes greater responsibility. टाइम मैनेजमेंट की हमने बात करी। देखिए अभी तक तो 90 मिनट्स दो ऐसे आता है। कल को अगर ऐसा हो जाए कि आ, 3 ऐसे डाल दें, तो मेंटली आपका कैलकुलेशन वही होना चाहिए कि फिर 60 मिनट्स फॉर ईच, 80 मार्क्स का ऐसे आएगा। फिर 80 जो भी मार्क्स का जिस तरीके से होगा, ये मैंने खाली ऐसे इसलिए लिखा है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, बट वी आर प्रिपेयर्ड। तो 90 मिनट्स के हिसाब से मैंने टाइम ब्रेक लिख दिया था आपको, मैंने इसमें भी लिखा हुआ है। थोड़ी सी डूज एंड डोंट्स मैंने लिखे हैं ऐसे के, जो आपको करना है, मतलब आप ध्यान में रखिए कि आप जब लिखते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग व्यूज हो सकते हैं, यू माइट हैव ऑल योर स्ट्रॉन्ग व्यूज which might stand a great argument, and things like that, but see that your essay does not align in a very strong view. It not necessarily you will get a paper checker who would like that kind of approach. प्लीज अपने देश को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, जिसके लिए आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हो, उसको आप until and otherwise there is a
reference point where government themselves have criticized or things like that. You can refer that, but you do not do from your own ki mujhe pasand nahi, this is not the way it should work and all that. Please don't do that. So give, do not use religious and regional fever fervor to your essay. And then ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका क्या, ऑल दैट थिंग ऐसे में नहीं आना चाहिए. पेसिमिस्टिक ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है आपने. दुखी आत्मा की तरह को पढ़ते हुए दुखी हो जाए ऐसा तो नहीं. पढ़ के उसका रिफ्रेश फील करे. ही फील्स और शी फील्स वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. एंड ऐसे को बिल्कुल एक थीसिस पेपर की तरह नहीं लिखना है. लिखना है एक जनरलिस्टिक न्यूज़पेपर. आप योजना में देखते होगे ऐसे लिखते हैं कई सारे बढ़िया राइटर. योजना में देख कुछ कुछ टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, ब्रेकअप कर ब्रेक डाउन करके आर्ग्यूमेंटेटिव करके. तो आप कभी उनको रिफर कर लीजिए. एक आध टॉपिक मैं भी योजना से लाके आपको दे दूंगा टू राइट. सो यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ. देन यू आस्क दैट व्हाई देयर इज नो मॉडल आंसर और मॉडल ऐसे ऐसा कुछ होता नहीं है. Because every one of you are individual, are unique, and your uniqueness is what gives you the USP to become civil servant. अगर आप कोई और बनने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला उस तरीके का इनपुट. आप बन के देखिए और करिए, यू विल गेट दैट. उसी को ही सुधारने के लिए हम पर्सनल, आप कैसे सिविल सर्विसेज के लिए सूटेड है, योर पर्सनैलिटी एंड हाउ इट कैन रिफ्लेक्ट थ्रू योर आंसर्स. उसलिए मेंटरिंग को यूटिलाइज कीजिए. आप किसी से भी मेंटरशिप कर रहे हो, see that you have a good discussion on all this topic, especially in conveying your ideas, how to put on your ideas on paper, the way you are writing, does it actually पढ़ने वाले को वो समझ में आ रहा है उस तरीके से, was that your intent. See, these are small in between the lines thing, but यही मैटर करता है when it comes to getting a high score. So I have also mentioned a kind of a demo for एक टॉपिक जो आया था in Gandhiji's view in I think 2012. We will say मैंने तो obviously डेमो के लिए लिया है, तो ऐसा कुछ लिया होगा जो ऑलरेडी आ रहा है. आज के ज़माने में ऐसे पेपर नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे. डोंट गो बाय दैट. हियर आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे विथ वेरियस ऐसे सिलेबस कंपोनेंट वी कैन एक्चुअली राइट अ गुड कंटेंट फॉर दिस टॉपिक. सो यू कैन रन थ्रू योर माइंड. थोड़ी सी माइंड ओपन अप हो जाएगा कि दिस इज हाउ यू कैन यूज इट, एंड दिस विल हेल्प यू टू. गांधी जी के लिए तो आपको हमेशा प्रिपेयर होकर रहना ही चाहिए. तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बी कैसे अपना ऐसे के लिए आइडिएशन करें एंड पॉइंट आउट पॉइंट्स बनाए. सो विथ दिस today's session is over and my handout is there available. All the enrolled student को मैंने पहले ही भेज दिया है. Go through them, see that you incorporate. And today's essay topic, if you have not yet even मैं अभी तक अगर आपने मॉक essay को कंप्लीट करके नहीं दिया है तो in the folder there is the mock essay. अगर आपने एक टॉपिक लिख दिया, आज दूसरे टॉपिक पे लिखिए, but use one of those topic itself and see that you submit your essay paper by tomorrow night for evaluation. And in the evaluation, I'm going to, because I know that you are parallelly doing multiple sessions, multiple places. What I would be doing is after the moment I get I evaluate, I also create short video and send it to you for viewing immediately, instantly. And when we do our counseling session, then we take some time and go word by word on things which needs to be improved upon essay, and also discuss few of the events जो आपने वहाँ पे कोट किए होंगे, करंट इवेंट्स कैसे उसमें डाल सकते हैं उन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट योर नोट मेकिंग ऑल्सो पैरेलली यू नो दैट कि इस थीम के टॉपिक के अराउंड आपने कुछ कुछ इवेंट्स, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अपने लिए आपने सेट करके रेडी करके रखे. So with this, today's session is over, and if you have any questions, any queries, please put it over the chat. और अगर आप ये इसको बाद में देख रहे हैं सेशन को, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. द व्हाट्सएप नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल ऑल्सो रन थ्रू दी स्क्रॉलर जहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं.
So let me know what is your thought about this session and about your this thing. What will matter कि आप क्या लिख के दे रहे हो. आप लिख के दो. Please put yourself in a timeline. 70 जो पेपर मेंस अभी देने वाले हैं, see that you have a very strict discipline for yourself. Be strict to yourself. It's a matter of not just this exam, but it's a matter of a service and a job. If you can't be strict to yourself, you cannot actually be a disciplinarian. और वो ज़रूरी है. कोई ज़रूरी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, जैसे भी हो, आपकी पर्सनैलिटी सुधर के आएगी. यू विल बी एबल टू इम्पैक्ट. अगर सूरज अपना डिसिप्लिन नहीं रखता और धरती अपना डिसिप्लिन नहीं रखती, तो वो डे नहीं चला पाता. सो इवन द प्लैनेट्स आर वेरी डिसिप्लिनेरियन, ताकि आप सबका काम दिन भर चले, टाइम वाइज चले. सो लर्न फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड दैट्स इट. दैट्स फॉर द सेशन टुडे. आपको कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे. आई एम ओपन टू क्वेरी. Let me just check WhatsApp once and I'll come back if I've got any query over there. Okay, अभी तक तो कोई क्वेरी नहीं है. आई थिंक देयर आर 5 minutes टू closure of the session. 7 o'clock we I end the stream. तब तक आई एम लाइव. एनीथिंग अगर आप अभी चेकआउट कर रहे हैं तो you can use the YouTube chat or the things to write, communicate to me.
Thank you very much for today's session. And uh, we have the next session, which is for the enrolled candidates on GS mains paper on 13th of July at 6 p.m. to 8 p.m. Your personalized counseling on topic and discussion on GS mains also will be scheduled in this week. So the sessions are for an overall approach of that particular topic, but आपका जो इंडिविजुअल डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो आपके आंसर राइटिंग से ही हमें समझ में आता है. यू हैव टू स्टार्ट सबमिटिंग योर आंसर्स फॉर दैट ऑल्सो. प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, उसके आंसर हमें लिख के भेजिए, and let us return you back the evaluated sheet, and so that your counseling is more focused on the identifying the gaps and how do we correct it. With this, looking forward for you to join our sessions and programs. All the best and best wishes. Thank you.